Now, our today's topic is modes of excretion. On the basis of nature of nitrogenous waste, animal कौन सा nitrogenous waste excrete कर रहा है? On the basis of that nature, there are four major types of excretion process observed in different types of animal. On the basis of consumption of water and on the basis of type of nitrogenous waste which is excreted by animal, four different types of methods are used. One is already we have discussed ammonitalism, in which ammonia is excreted as a nitrogenous waste, so that animals are called as ammonitalic animal and phenomena is called as ammonitalism. Ureotelism, a type of nitrogenous waste in which urea is excreted as a nitrogenous waste. The phenomena is called ureotelism, and animals which excrete urea are called as uricotelic animal. Ureotelic animal. Now uricotelism. Now come to our next point called uricotelism and guanotelism. Now come to this point, uricotelism. What do you mean by this term called uricotelism? Uric acid, a type of nitrogenous waste in which some animal excrete uric acid from their body. ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी से क्या रिलीज कर रहे हैं? यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं. मीन्स यूरिक एसिड compound is the least toxic compound. It's the least toxic nitrogenous waste. ठीक है, इसका मतलब टॉक्सिसिटी जो है यूरिक एसिड की, when you observe the toxicity is nil. That's why animals store it. This animal यूरिक एसिड को अपने बॉडी में क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा. Means the animal which excrete uric acid from their body as a nitrogenous waste, uric acid is thrown outside the body. You call that phenomena is called uricotelism. Uricotelism यानी कि ureotelism or uricotelism, and that animals are now called as uricotelic animal. अब उस एनिमल को क्या बोलना पड़ेगा? यूरिकोटेलिक एनिमल्स which excrete uric acid from their body. ठीक है? Now next point is this uric acid is retained in the body for longer time, क्योंकि जब टॉक्सिक ही नहीं है तो एनिमल इसको अपने बॉडी में क्या करेगा? स्टोर भी करेगा. लॉन्ग टाइम तक एनिमल उसको अपनी बॉडी में स्टोर करेगा. एंड ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड need only 10 ml of water to dissolve it. 1 ग्राम यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए एनिमल को ओनली ड्रॉप्स ऑफ वाटर लगता है. हार्डली 5 to 10 ml वाटर जो है इज नीडेड. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस यूरिक एसिड इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. जैसे यूरिक एसिड जो है वाटर में इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि जब पानी, इसीलिए एनिमल जो है वाटर का इंटेक जो है बहुत कम कर रहा है. एंड वन मोर रीजन इज इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व द कन्वर्शन, जब आप कन्वर्शन की बात करो तो हियर द अमोनिया कंबाइन विथ यूरिया, दिस अमोनिया कंबाइन विथ यूरिया. ठीक है, अमोनिया का कॉम्बिनेशन अगर जब यूरिया से होता है तब ये यूरिक एसिड फॉर्म होता है. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिक एसिड इट रिक्वायर मोर एनर्जी. और इसके कन्वर्शन में कितनी एनर्जी लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है अमोनिया का यूरिक एसिड में, जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, इट इज डन इन लीवर. और ये पूरी फिनोमिना जो है काय में होगा? लीवर में होगा. इज इट क्लियर? इट ऑकर्स इन लीवर एंड द पाथवे विच इज नीडेड टू फॉर्म दिस यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज आइनोसिनिक पाथवे. You call that pathway as inosinic pathway. That's why animal excrete this uric acid in form of solid paste, semi-liquid, semi-solid form, or you may call pellets, granular form में. एनिमल जो यूरिक एसिड अपनी बॉडी से कर रहा है वो सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस में रिलीज कर रहा है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज कर रहा है, विस्कस जेली कंपाउंड में रिलीज कर रहा है, ग्रैनुलर फॉर्म में रिलीज कर रहा है, एंड यू कॉल इट एज पैलेट्स. और उससे अपन उसको क्या बोलोगे? पैलेट्स बोलोगे. दैट्स व्हाई एनिमल कंजर्व वाटर, इसलिए ऐसे एनिमल जो है क्या करेंगे? वाटर को कंजर्व करते हैं.
and then they release uric acid from their body. It is best observed in some animals belonging to land snails. ये कौन से एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा? It is best observed when you observe the examples. It is best observed in animal like birds, which are kept under aves. Some animals belonging to land reptiles, terrestrial reptiles. Here also uric acid is thrown outside the body. Some terrestrial insects are there. Some terrestrial insects are there in which uric acid is thrown outside the body, and some land snails are there. Land snails in which animal release uric acid from their body. So these are the diagnostic features. Once a यूरिकोटेलिज्म फिनोमिना स्टडीड, जब यूरिकोटेलिज्म फिनोमिना जब स्टडी करोगे तो इतने डायग्नोस्टिक फीचर्स जो है आते हैं. क्या क्या आया? यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट है, लीस्ट वेस्ट, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है. द एनिमल which excrete uric acid from their body are called as यूरिकोटेलिज्म, एंड द एनिमल which shows it, तो ये सब एनिमल्स क्या आएंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल्स कराएंगे. इसका मतलब यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक रहने के कारण इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो नील है. 1 ग्राम यूरिक एसिड को अगर डिसॉल्व करना है तो एनिमल को हार्डली 5 to 10 ml वाटर लगेगा. इसको तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर एनिमल ड्रिंक. ठीक है? दैट्स व्हाई दीस एनिमल्स, टेक फॉर एग्जांपल फॉर बर्ड्स, एव्स. कौन से क्लास में आता है? एव्स में. द बॉडी इज वेटलेस, क्योंकि एनिमल वाटर ड्रिंक ही नहीं कर रहा है. एनिमल अगर वाटर ड्रिंक करेगा तो बॉडी हेवी हो जाएगी, और हेवी होने के कारण द एनिमल कांट टेक फ्लाइट. दिस इज आल्सो वन रीजन सो दैट बर्ड्स टेक इजी फ्लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है? इसका मतलब कंसीडरेबल एनर्जी जो है यहां पर भी ज्यादा लगेगी. इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. और ये जो फिनोमिना जिसमें अमोनिया का कन्वर्शन हुआ है, अमोनिया कंबाइंड विद यूरिया एंड टू फॉर्म यूरिक एसिड, इट इज ऑब्जर्व्ड इन लीवर. ये कहां ऑब्जर्व करने को मिलेगा? लीवर में. और वो जो पाथवे है जो कन्वर्शन करवा रही है, यू कॉल दैट पाथवे एज आइनोसिनिक पाथवे. You call that pathway as inosinic pathway. That's why the uric acid thrown in form of solid paste, semi-solid material, pellet-like material, granular-like material, so that animal throw it as early as possible. Sometimes this uric acid, कई बार क्या होता है, ये जो uric acid है, ये डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, हो जाता है बॉडी में. डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म मीन्स बॉडी में किडनी के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट को थ्रो किया जाएगा, किडनी जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, वहां पर कुछ डिफेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू यूरिक एसिड बॉडी से थ्रो नहीं हो रहा है, बट इट इज स्टोर्ड, एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी. अभी जो यूरिक एसिड एक्सेस में फॉर्म हो गया है, वो अब कहां एक्यूमुलेट होगा? दैट यूरिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड इन बिटवीन बोन्स एंड यू कॉल इट जॉइंट्स. एट द टाइम सम पेन इज देयर. ऐसे समय पर कई बार क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर जॉइंट्स के बीच में इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, एंड दैट फ्रिक्शन कॉजेज ए डिसीज, एंड यू कॉल दैट डिसीज एज गाउट. यू कॉल इट दैट डिसीज एज आर्थराइटिस. उस समय डिसीज को क्या बोला जाता है? आर्थराइटिस, विच इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन. बॉडी में अगर एक्सेस यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जॉइंट्स में जनरली ये पेन क्रिएट करता है, और जॉइंट्स में जो पेन क्रिएट कर रहा है, इट इज हार्मफुल फॉर दैट इंडिविजुअल. नाउ कम टू नेक्स्ट वन कॉल्ड एज गुआनोटेलिज्म. कम टू नेक्स्ट वन कॉल्ड एज गुआनोटेलिज्म. Guanotelism is also a nitrogenous base process in which the nitrogenous base which is excreted by some animal is in form of guanine. कुछ एनिमल ऐसे हैं जो नाइट्रोजनस बेस को किसके रूप में रिलीज कर रहे हैं? नाइट्रोजनस बेसिक मटेरियल है ये, और नाइट्रोजनस बेस जो रिलीज हो रहा है बॉडी से, वो ग्वानिन के रूप में हो रहा है. ठीक है? इन विच एनिमल नो नीड ऑफ वाटर कंजम्पशन. ये ऐसे एनिमल रहेंगे जो वाटर का कंजम्पशन करते ही नहीं है. इज इट क्लियर? देयर इज नो नीड टू टेक वाटर और टू एब्सॉर्ब वाटर. इसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस है. नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक प्रकार का क्या है? नाइट्रोजनस बेस है वो. जैसे आपने पढ़े हो, व्हेन यू ऑब्जर्व डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड,
तो इसमें प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वलिटी शो करता है डीएनए, ठीक है। और उस प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वलिटी में नाइट्रोजनस बेसेस है, एडेनाइन है, ग्वानिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। तो उसमें ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस अगर बॉडी से रिलीज हो रहा है तो उस टर्म को बोला जाएगा ग्वानोडेलिज्म एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ग्वानोडेलिक एनिमल। एनिमल्स को क्या बोला जाएगा? ग्वानोडेलिक एनिमल। नाउ वेयर दे आर फॉर्म? दे आर फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियोटाइड metabolism. They are formed during nucleotide metabolism. Is it clear? And always they are excreted in solid form. और हमेशा ग्वानिन जो एक्सक्रीट होगा वो सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। Is it clear? Now where it is formed? Where it is observed? It is best observed in animal belonging to spiders. It is best observed in animal belonging to spiders. Then scorpion and penguin. These are the best examples in which the animal excrete guanine as a nitrogenous base, as a nitrogenous waste. These are the best examples. One is scorpion, one is spider, and one is penguin, which belongs to arachnids. जो किसको belong करता है? Arachnids को belong करता है। तो ये तो रहा डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एनिमल के पास वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अलग अलग टाइप का एक्सक्रीट हुआ है। नाउ सम नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच इज एक्सक्रीटेड बाय डिफरेंट एनिमल, यू कॉल इट एज माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट। माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट निग्लिजिबल अमाउंट में कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एनिमल अपनी बॉडी से क्या करता है? थ्रो करता है। तो विचार दे कौन सा है नाइट्रोजनस वेस्ट? तो माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट जो एनिमल एक्सक्रीट करेगा इट इज इन फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन। एक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है किस रूप में? क्रिएटिनिन के रूप में है। वन इज इन फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, वन माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट वी कॉल इट क्रिएटिन, एंड वन इज कॉल्ड एज हाइपोरिक एसिड। One is called as hypuric acid. So these three are those nitrogenous waste which are thrown by some animal in minor form. ऐसा nitrogenous waste जो एकदम minor form में animal अपनी body से क्या करेगा? throw करेगा। Now when you observe one more terminology, you call it as defecation. इसका मतलब जो digestive waste है वो digestive waste को nitrogenous waste नहीं बोलते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट आर नॉट एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो आपके बॉडी के सेल्स में एंटर नहीं करता, ठीक है। डाइजेस्टिव वेस्ट आर नॉट एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बिकॉज दे नेवर एंटर्स द सेल्स, इसलिए वो बॉडी के सेल्स में एंटर नहीं करता। इसलिए यू कॉल दैट टर्म एज डिफिकेशन। उस समय उस वर्ड को क्या बोला जाएगा? डिफिकेशन। One word called as defecation. Solid waste जो एनिमल अपने बॉडी से एग्जिट कर रहा है, थ्रो कर रहा है, यू कॉल दैट वर्ड एज डेफिकेशन। और लिक्विड वेस्ट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो हो रहा है यू कॉल इट एज यूरिन। उस समय उसको क्या बोलोगे? यूरिन। और इसको बोलेंगे फीकल मैटर। डेफिकेशन यू कॉल इट एज फीकल मैटर। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज used in this chapter. Amultelism we have completed, ureotelism we have completed, uricotelism we have completed, and guanotelism we have completed. बहुत सारे biological words हैं, ठीक है? You should know very well and observe the examples. ये जो examples है, ये examples की तरफ भी आपको ध्यान देना है। कौन से animal, कौन सा nitrogenous waste जो है exit कर रहा है, वो कितना toxic है, टॉक्सिक कम है, तो नेचुरली एनिमल उसको स्टोर करेगा बॉडी में, कंजर्व करेगा। और वाटर का प्रिजर्वेशन जो है एनिमल की जवाबदारी है कि वाटर को प्रिजर्व करे, बिकॉज वाटर इज मस्ट फॉर एवरी एनिमल्स टू सर्वाइव। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन।